So let's start today's session. Just give me the response. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Just I will check the number of participants. Okay, good. So is my screen visible to you? Yes, sir. हो ह्यानी तर दिले. So काय केक घ्यायला येणार तेव्हा देणार ना. ह्यानी दिले बोलली ती. unmute the mic, students. Please unmute your mic. So in last three sessions, we already saw some types of SQL commands. तो कौन कौन सा SQL कमांड्स हम लोग देखा था लास्ट थ्री सेशंस में? DDL, DML, data definition language, data manipulation language, data control language, and the transaction control language. And today we will see the command which is used for the data retrieval, and that is nothing but the select command. Okay, so let us first see the syntax for select command. Select, so you can write star. So what do you mean by star? Can any student tell me star का meaning क्या होता है? All the All. contents. All. Yes, if I want to display all the columns, you can write the star. And write the selected columns like column 1, column 2. Likewise, you can write n number of columns. Or you can write expression. Expression क्या होता है that I will tell you. So either you can write star means all the columns, or you can write the selected columns, or you can write the some mathematical expression in this select command. Next one is for the from, then you can write the name of the table, and the third one is the and the condition. So from, you need to write the name of the table, from which table you want to display the data, and the condition, तो जो भी condition satisfy करेगा that data will be displayed. Okay, so this is just the syntax for the select statement. Now there are some guidelines regarding this select command. तो क्या क्या guidelines है? तो आपका जो भी SQL statements होता है या select command होता है, that is not case sensitive. So this is not case sensitive. अभी case sensitive का मतलब क्या होता है? Either you can write select or you can write upper case में select, it doesn't matter. तो it depends on you whether you want to write small case, upper case, it totally depends on you. That means commands are not case sensitive. Okay, then the second one, you cannot abbreviate command. तो क्या नहीं कर सकते? कमांड्स को एब्रीवेट नहीं कर सकते. अभी एब्रीवेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक आपको कमांड दिया था, देखो कि इफ आई वांट टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी विच कमांड इज देयर? आई वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ माय टेबल, तो कमांड का नाम क्या था? वेरी गुड. तो आई कैन राइट डिस्क्राइब. तो डिस्क्राइब is the command to get the structure of a table. लेकिन ये डिस्क्राइब को हम लोगों ने एब्रीवेट करके क्या लिखा था? DSC. DESC. तो
तो एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, जैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसका एब्रीवेशन क्या होगा, यूएसए। तो यूएसए इज नथिंग बट द एब्रीवेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम लोग यूएसए भी बोल सकते हैं, हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैंने डिस्क्राइब लिखा, ये इतना बड़ा वर्ड मेरे को लिखने का नहीं है, तो आई कैन राइट जस्ट डीएससी। तो ये डिस्क्राइब के लिए चलेगा, बिकॉज डिस्क्राइब इज नॉट एसक्यूएल कमांड। तो you cannot abbreviate SQL commands, but describe is not SQL command। इसको कौन सा बोलते हैं, तो ISQL स्टार प्लस कमांड बोलते हैं इसको। अब ये ISQL स्टार प्लस क्या होता है, दैट वो अपने को बाद में आएगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब इज नॉट SQL कमांड, दिस इज ISQL स्टार प्लस कमांड। लेकिन आपके नॉर्मल जो एसक्यूएल कमांड्स है उसको आप लोग एब्रीवेट करने का नहीं। फॉर एग्जांपल अब ये सिलेक्ट कमांड है, तो सिलेक्ट को आप लोग एसीएल नहीं लिख सकते, उसको आप लोग शॉर्टकट में नहीं लिख सकते। सिलेक्ट है तो आपको सिलेक्ट ही लिखना पड़ेगा। वेयर को आप लोग शॉर्टकट में WH ऐसा नहीं लिख सकते, ओके। तो एब्रीवेशन करने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, it is better to write each clause on separate। so it is better का मतलब होता है कि it's good for reading। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि each clause write on separate line। अभी clause का मतलब क्या होता है, select is first clause, from is a second clause, where is a third clause। so likewise और तीन clauses है, जैसा group by, having and order by। तो ऐसे 6 clauses है टोटल। तो ये 6 clauses को आप लोग सेपरेट लाइन में अगर लिखेंगे, देन इट इज बेटर टू रीड। तो रीड करने के लिए वो बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर एक लाइन भी लिखोगे ना आप लोग तो भी चलेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्लॉजेस को आप लोगों को एक लाइन के ऊपर लिखने का है या सेपरेट लाइन के ऊपर लिखने का है। बट इट इज बेटर टू राइट ईच क्लॉज ऑन अ सेपरेट लाइन, ओके। तो केस सेंसिटिव नहीं है कमांड को एब्रीवेट नहीं करने का, एंड इट इज बेटर टू राइट द ईच क्लॉज ऑन सेपरेट लाइन, ठीक है। सर ये सिर्फ सेलेक्ट के लिए है कि पूरे एसक्यूएल कमांड के लिए है? नहीं, पूरे एसक्यूएल में जितने भी कमांड्स है वो केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। आप लोग एब्रीवेट नहीं करने का, एंड जो भी क्लॉज रहेगा वो सेपरेट लाइन के ऊपर लिखने का। ऑल इसके लिए, इट इज नॉट फॉर द सिलेक्ट के लिए, दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ कमांड्स के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये आपका सिंटैक्स हो गया, गाइडलाइंस हो गया। नाउ जब आप लोग ये OCA का एग्जाम दोगे ना, तो ये गाइडलाइंस सिलेक्ट करने के लिए आता है कि सिलेक्ट द प्रॉपर गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एसक्यूएल कमांड्स। तो ये एक क्वेश्चन होता है वहां पे सर्टिफिकेशन एग्जाम में। अभी क्या करते हैं, मैंने ना 10 क्वेश्चन ये निकाला है। अब ये 10 क्वेश्चन अगर हम लोग प्रॉपरली करेंगे ना, तो आप लोगों का बहुत सारा मतलब एसक्यूएल का सिलेक्ट का जो भी है ना, वो अपना पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके क्या करते हैं, ये कमांड्स टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये फाइल जो है वो मैं अपलोड करूंगा, इसका टेंशन मत लो ना। अभी फर्स्ट कमांड क्या है देखो जरा, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज। अभी ऑल द एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि यहाँ पे मुझे टेबल में जितने भी एम्प्लॉइज है उनको मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। ऐसा बोला नहीं है कि आप लोगों को एम्प्लॉय का कौन सा डेटा डिस्प्ले करने का है, मतलब मुझे आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए या डिपार्टमेंट चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है। तो आई कैन राइट सिलेक्ट स्टार from employee। Either you write these 2 lines as a single line या 2 separate line लिखा तो भी चलेगा, but it is better to write on separate line क्योंकि ये first clause है और ये आपका second clause है, ओके। तो एक clause एक लाइन के ऊपर लिखो तो रीड करने के लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, ओके। तो एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं। टेबल ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन पे लिखा है, ठीक है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो देखो, दिस इज योर डेटा। तो टोटल देयर आर
5 एम्प्लॉयज वर्किंग इन माय कंपनी। तो सब एम्प्लॉयज का डेटा आ गया, सब रोज भी आ गया एंड सब कॉलम्स भी आ गया। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एसक्यूएल क्वेरी। ओके, नाउ तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? डिस्प्ले आईडी, नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। So I can write select ID, name, salary from employee. Simple query. तो इसको क्या करता हूं मैं, अभी सिलेक्ट करता हूं, एकदम स्लोली जाते हैं, बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगा क्वेरी का। See this. I will get all the employees, लेकिन वो सभी एम्प्लॉइज का I display ID, name and salary. Okay, so this is the selected columns. So if I want to display all the columns, you can write star. If I want selected columns, then you can write this column names. Again, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ID आप सैलरी आप लोगों को दूसरा कॉलम करने का है, तो you can write here like this, ID, salary, name, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो नेसेसरी नहीं है कि आप लोगों का ऑर्डर मतलब जैसा टेबल में ऑर्डर है वैसे ही आप लोगों को डिस्प्ले करने का है। यू कैन चेंज द ऑर्डर। तो जो कॉलम आपको पहला डिस्प्ले करने का है, दैट कॉलम यू कैन राइट फर्स्ट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नाउ थर्ड कमांड, डिस्प्ले दोस एम्प्लॉइज whose salary is more than 3000. तो I can write select star. मुझे क्या बोला है, display those employees whose salary is more than 3000. तो बोला नहीं है मुझे कि exactly कौन सा कॉलम को डिस्प्ले करने का है। हाँ, कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। कॉलम के रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जिनका सैलरी 3000 से ज्यादा है, दिस इज माई रिस्ट्रिक्शन। लेकिन डिस्प्ले करने के लिए कॉलम बोला नहीं है। तो अगर बोला नहीं है तो यू कैन राइट सिलेक्ट स्टार। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आई कैन राइट वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी आप लोग टेबल में देख रहे हो, तो 3000 से ज्यादा सैलरी किसका है? संतोष 3630, 5500, 3025 एंड द 3000 नहीं है। दैट मीन्स टोटल देर आर 3 एम्प्लॉइज जिनका सैलरी 3000 से ज्यादा है। तो 3 एम्प्लॉइज आ गया जिनका सैलरी 3000 से ज्यादा है। इफ आई वांट इक्वल टू 3000 आल्सो, so I can write here greater than or equal to. So I will get 4 employees. Okay, क्योंकि एक एम्प्लॉय का सैलरी 3000 से कम है। This is also very simple. Next one. Those employees who are working. डिस्प्ले होगा ना, कंटेंट तो जो ऑलरेडी टेबल में है वो तो एज इट इज रहेगा ना। हाँ, सिलेक्ट कमांड दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पज। टेबल के अंदर जो डेटा है ना आपका, वो चेंज नहीं होगा। टेबल के अंदर का डेटा अगर आपको चेंज करने का है तो यू नीड टू यूज द डीएमएल कमांड, इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। ये जो सिलेक्ट है ना, ये सिलेक्ट आप लोगों का डेटा को कभी चेंज नहीं करेगा। टेबल के अंदर का जो डेटा है ना, वो रिट्रीव करके आप लोगों को डिस्प्ले करेगा, बट इट डजंट मेक एनी चेंजेस। चेंजेस करने का है तो देर आर 3 कमांड्स ईडू करके, IDU, इंसर्ट डिलीट अपडेट। ये 3 कमांड से आपका डेटा अपडेट हो सकता है। ओके, नाउ कमांड नंबर 4, डिस्प्ले दोस एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो आई कैन राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, PT equal to, so I can write marketing, MKT। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो 3000 है, ये 3000 आपका नंबर है, और ये जो मार्केटिंग है, दिस इज योर
variable character, varchar, or you can say string. So whenever you compare any number, ये comparison operator है, जब आप लोग नंबर को कंपेयर करते हो तो वो नंबर ही देने का, इवन 3000 है तो आप लोग कैसा लिखते हो 3,3000, ऐसे भी नहीं लिखने का, आपका जो भी नंबर है वो नंबर आप लोगों को विदाउट कॉमा लिखने का, इवन 30,000 करने का है तो 30,000 भी आप लोग ऐसा प्योर नंबर फॉर्म में लिखने का, कॉमा वगैरह बिल्कुल देने का नहीं। अगर आप लोगों को स्ट्रिंग को कंपेयर करने का है तो यू नीड टू इंक्लूड दिस स्ट्रिंग इन सिंगल कोट्स। और कौन सा है, अगर आपको कंपेयर करने का है तो सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी है। एनी स्टूडेंट नोस, पता है कि सिंगल कोट्स में और कौन कौन और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं कंपैरिजन के लिए? ईमेल, कैरेक्टर्स। ईमेल भी क्या ही होगा ना, स्ट्रिंग हो गया ना। डेट, यस, वेरी गुड। सो टू कंपेयर स्ट्रिंग एंड डेट, राइट इन डेट और स्ट्रिंग, इनको आप लोगों को कोट्स में लिखना पड़ेगा। एनी स्टूडेंट नोज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डेट? एक फॉर्मेट योर मंथ डेट, क्या? DDMMYY। MMYY। MON YY, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है ना वो ये, हाँ, DD MON YY। अभी एग्जांपल तो DD आज का 11 तो मैं 11 लिखूंगा। MON का मतलब होता है 3 लेटर एब्रीविएशन ऑफ मंथ, AUG, and YY, I can write 20. So 11th August 20. So this is the standard format for any date. DD MONY। तो अगर मुझे डेट को अगर कंपेयर करने का है तो आप लोगों को ये जो डेट है, ये डेट इसमें लिखना पड़ेगा, कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। किसी का माइक ऑन है। अगर आप लोगों को स्ट्रिंग कंपेयर करने का है, स्ट्रिंग आल्सो यू नीड टू राइट इन सर कोट। माइक ऑन है किसी? क्या? अनम्यूट करो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस। लेट अस रन दिस एंड आई विल गेट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देयर इज ओनली वन एम्प्लॉय, संतोष। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का तो सिंगल कोट्स, नंबर को कंपेयर करने का तो सिंगल कोट्स देने का नहीं, डेट को कंपेयर करने का है तो भी आप लोग सिंगल कोट्स में ही देने का। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका क्वेरी नंबर 4। नाउ तो ये नोट वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप लोगों को बाद में मिलेगा। नेक्स्ट वन, वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सैलरी मोर देन 3000, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और उनका सैलरी भी 3000 से ज्यादा चाहिए। तो क्या करने का, ये ऊपर का क्वेरी में क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप कर, एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्या चेंजेस करने का बोलो जरा, और इसमें एंड ऑपरेटर का लगे क्या? एंड सैलरी 3000। एंड डबल एंड या सिंगल एंड? डबल। ठीक है, डबल एम्परसेंट। ठीक है, ठीक है, आप लोग अभी बोल रहे हो इसलिए मैं डबल एंड यूज कर रहा हूं। तो एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 3000, तो डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग एंड सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो अभी क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं एंड लेट्स देखते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं आता है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड रन। ये देखो, SQL command not properly ended means मेरा प्रोग्रामिंग का एंड नहीं चलेगा, एंड लिखना पड़ेगा। कौन सा? सिंगल एंड? एंड ऐसा AND लिखना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ,
डबल एंड है, डबल एंड इसमें वर्क नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को मार्केटिंग भी चाहिए और सैलरी, ये दोनों कंडीशन अगर चाहिए, तो डोंट गिव एंड, यू नीड टू गिव AND। अगर आपको और चाहिए तो जो दो वर्टिकल लाइन लिखते हैं हम लोग, और का ऑपरेटर का नोटेशन, वो नहीं, OR देने का। तो एंड चाहिए तो AND करके लिखने का। नाउ यू विल गेट द आउटपुट। ये देखो, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सैलरीज 3630, मतलब दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूं, एंड के जगह पे आई विल राइट और का मतलब क्या होगा, मार्केटिंग होगा तो भी डिस्प्ले होगा, एंड सैलरी 3000 से ज्यादा होगा तो भी डिस्प्ले करेगा। आइदर मार्केटिंग और सैलरी ग्रेटर देन 3000, मतलब दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये देखो, तो संतोष मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इवन सैलरी भी ज्यादा है। अमिता डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है बट सैलरी 5500 है, मतलब 3000 से ज्यादा है। संकेत वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट बट सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो और का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन होगा तो भी आपका आउटपुट आएगा। लेकिन जब आप लोग एंड लिखोगे यहाँ पे, तो आप लोगों का दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को एंड और अगर कंडीशन चाहिए तो डबल एंड जो वर्टिकल लाइन है जो हम लोग यूज करते प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम एंड जावा में, वो यूज नहीं करने का। यू नीड टू यूज द AND एंड OR, वो यूज करने का। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेरी नंबर 5। यहाँ पे मैं AND करके लिखता हूं। ठीक है, कमांड नंबर 6। So this is very important from placement point of view। ये जनरली मतलब पूछते हैं, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे वेरिएशंस लेंगे अभी। I want to display those employees whose name start with S, जिनका नाम S से स्टार्ट होता है, वो एम्प्लॉयज मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो फिर एग्जैक्टली क्या करने का, तो एक काम करता हूं, first I will select display all the employees। ओके, कौन कौन एस से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉयज है, संतोष, संकेत एंड स्वप्ना, ऐसे 3 एम्प्लॉयज है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखेंगे ना बराबर, संतोष का एस जो है वो स्मॉल केस है और संकेत एंड स्वप्ना एस कैपिटल है। तो जस्ट मुझे बताओ कि ये जो डेटा एंटर किया है वो डेटा मतलब केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव नहीं होता है, जस्ट पोस्ट कमेंट सेक्शन में। सेंसिटिव। ओके, जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में, कि कमेंट में पोस्ट करो, सो दैट मेरे को पता लगेगा कि बाकी स्टूडेंट्स का मतलब क्या व्यू पॉइंट है एग्जैक्टली। सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Pradna is saying no case sensitive, Bijal case sensitive, okay, case sensitive, okay, ये तो मिक्सचर हो गया। Okay, Nikhil is also saying case sensitive, okay, Riddhi is saying not case sensitive, okay। मैंने आप लोगों को ना वो गाइडलाइंस में बोला था SQL commands are not case sensitive। मैंने थोड़ी वर्ड यूज किया था कि टेबल के अंदर का डेटा इज ऑल्सो नॉट केस सेंसिटिव। टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स ये जो संतोष लिखा है मैंने, उसका एस स्मॉल केस है। अगर मैंने संतोष और एक बार एंटर किया एंड उसका अगर एस कैपिटल है तो वो दोनों अलग अलग है। बट टेबल का अंदर का जो डेटा होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ओके, अभी एक काम करते हैं अगेन। यस, तो इट्स अ केस सेंसिटिव। टेबल के अंदर का डेटा इज केस सेंसिटिव बट एसक्यूएल कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखो। ओके, नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन। अगर आप मतलब किसी को पता होगा तो क्योंकि मैंने अभी तक वो टॉपिक नहीं लिया है।
अभी क्वेरी क्या है अपना कि आई वांट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट विथ एस। एनी स्टूडेंट नोस कि कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट करने का है? तो ऐसा कौन सा कीवर्ड किसी को पता है? अगर वो मैंने यूज किया तो परसेंटेज। मुझे एस से स्टार्ट नाम मिलेगा। यस, वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कीवर्ड्स लाइक कीवर्ड, वेरी गुड। तो क्या करता हूं देखो, मैं एक काम करते हैं, लाइक जाने दो, मैं इक्वल टाइप करता हूं क्योंकि मुझे क्या करने का, अभी कंपेयर करने का है ना कि जिनका नाम एस से स्टार्ट, नेम इज नथिंग बट द स्ट्रिंग, तो मैं क्या करता हूं सिंगल कोट्स में लिया। अभी एस से स्टार्ट होता है लेकिन एस के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, एस के बाद कि कौन सा भी कैरेक्टर आ सकता है और कितना भी कैरेक्टर आ सकता है, तो आई कैन यूज परसेंट ऑपरेटर। परसेंट का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा, 0 और कैरेक्टर, सिंगल कोट्स कंप्लीट करता हूं एंड इसको रन करता हूं। तो मुझे क्या मिला, नो डेटा फाउंड, मुझे डेटा नहीं मिला है। तो डेटा क्यों नहीं मिला है? तो क्या करता है, नेम जो होगा ना, वो नेम को कंपेयर करता है एस परसेंट के साथ। किसी भी एम्प्लॉय का नाम एस परसेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर यूज करने का लाइक कीवर्ड। तो लाइक याद रखने का, इट इज यूज फॉर द पैटर्न मैचिंग। ओके, पैटर्न को क्या करता है, मैच करने के लिए लाइक कीवर्ड यूज होता है। तो अभी मैंने क्या लिखा, नेम लाइक एस परसेंट। नाउ आई विल एग्जीक्यूट। ये देखो संकेत एंड स्वप्ना, और दोनों का देखो एस जो है वो अपर केस है, लेकिन संतोष भी है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है। अभी मेरा क्वेरी क्या है, किनका नाम, तो एस के स्वप्ना एंड संतोष भी है, तो मुझे संतोष भी चाहिए। तो एनी स्टूडेंट नोस कि क्या चेंज करने का, अगर पता होगा तो जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट्स में पोस्ट करो। एक्चुअली ना वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सो दैट ना बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या होगा, थोड़ा समझ में आएगा कि ये क्वेरी में आप लोग एग्जैक्टली क्या चेंज करोगे। ओके, लाइक एस परसेंट और एस परसेंट, ओके, और बोल रहे, ओके ठीक है, और शुड बी यूज, ओके। एंड प्रज्ञा, एंड कैसा यूज करेंगे? एंड अगर यूज किया तो मतलब जिसका कैपिटल एस भी है, स्मॉल एस, तो एक ही सर पर दोनों चाहिए ना, जिसका नाम एस स्मॉल एस से भी है और बिग एस से भी है ना। तो दोनों चाहिए, तो कैपिटल एस और स्मॉल एस। सर माइक ऑन किया किसी ने। मैंने क्या किया है, वेयर नेम लाइक एस परसेंट और लाइक एस परसेंट, ठीक है, आप ऐसे में यूज करता हूं। तो देखो रन करता हूं, तो देखो संतोष, संकेत, स्वप्ना। अब ये और के जगह पे मैं एंड करता हूं तो नहीं आया। तो वो क्या करता है कि एम्प्लॉय का नाम कैपिटल एस भी चाहिए, स्मॉल एस भी चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही एम्प्लॉय का नाम स्टार्टिंग में कैपिटल एस एंड स्मॉल एस कैसा हो सकता है? तो और चाहिए। लेकिन ये भी ना बहुत थोड़ा, ये क्या बोल रहे हैं इसको, बहुत लेंथी है। मतलब आपका जो कंपैरिजन है ना वो 2 बार हो रहा है, तो ये 2 बार नहीं चाहिए। आई वांट कंपैरिजन ओनली वंस। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव है तो मेरे को बताओ जरा, जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। ये बहुत लेंथी हो गया, सर ऐसा नहीं। सर ये एस परसेंट सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को ही लेता है। यस, एस परसेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इज एस एंड एनीथिंग। अभी आपको क्या करने का है, लास्ट में ए सर तो चाहिए। बाकी क्यों नहीं आ रहे थे सर? तो संतोष और स्वप्ना भी आना चाहिए ना, कि उसका भी स्टार्ट एस है, बाकी एनीथिंग है ना। हाँ तो आ रहा था ना, ये देखो ना, अभी मैंने कैपिटल एस किया ना, एस परसेंट, ये क्या संकेत एंड स्वप्ना आ गया।
हाँ, लेकिन Yes, sir, आप yes. लोग एंड लिखते हो ना, एंड का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक नाम है वो एक नाम कैपिटल S% एंड स्मॉल S% भी होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन एक नाम के ऊपर होना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अच्छा सर, आपने पहले वहाँ पे लाइक की जगह पे इक्वल लिखा था, इसलिए नहीं आया वो। हाँ, तो इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी आप लोग ये, हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ना अपना क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, वो मैं लेता हूँ आप लोगों का। समझो अभी मुझे ना लास्ट में ए चाहिए, तो अभी लास्ट में ए चाहिए तो क्या करने का, परसेंट और ए लिखने का, परसेंट और ए। अभी परसेंट का मतलब क्या होता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड लास्ट में मुझे ए मिला, सॉरी लास्ट में मुझे ए चाहिए, तो नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखो, अमिता लास्ट में ए आता है, स्वप्ना लास्ट में ए आता है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टिल पेंडिंग है। हाँ, तो मुझे आप लोग बताओ, मैंने क्या बोला था, आई वॉन्ट एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट विथ एस, लेकिन वो एस स्मॉल केस भी चलेगा या अपर केस भी चलेगा, मतलब दोनों टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे संकेत और स्वप्ना मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी को पता है तो पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में, क्या करने का आप लोग है, किसी को पता? S%, ओके, से क्या करने का, देखो सभी एम्प्लॉइज का नाम, जो एम्प्लॉइज है अपने, वो सभी एम्प्लॉइज का नाम एक काम करता हूं, अपर केस में कन्वर्ट करता हूं। तो यू नीड टू यूज वन स्ट्रिंग फंक्शन कॉल्ड एज अपर। तो आपका संकेत, स्वप्ना, संतोष अपर केस में कन्वर्ट होगा, एंड अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद मैं अपर केस एस के साथ कंपेयर करता हूं एंड एग्जीक्यूट करता हूं। Select star from employee, just give me time. Select star from employee where upper name like S%. Why it is not coming? Okay, see. तो संतोष, संकेत एंड स्वप्ना, देखो ये आ गया, मतलब स्मॉल केस एस भी है ना, ये आपका अपर केस में कन्वर्ट होके एस के साथ मैच हो गया। या इसका अल्टरनेटिव आप लोग लोअर करो और आप लोग के साथ कंपेयर, अभी अपर एस के साथ कंपेयर मत करो, स्मॉल एस के साथ कंपेयर करो, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी आपके एम्प्लॉइज के नाम है वो लोअर केस में कन्वर्ट किया। तो एग्जीक्यूट करो, अरे ओके, कर्सर नीचे जाइए, ठीक है, ये सेम आउटपुट आ गया आप लोगों का। बट माय वन क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने नेम को लोअर केस में कन्वर्ट, तो लोअर में कन्वर्ट हो गया तो आपका टेबल का डेटा भी चेंज हो गया क्या? जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में, इज टेबल डेटा इज आल्सो चेंज, या टेबल का डेटा आप लोगों का जैसा था वैसा ही रहेगा? यस, तो आप लोगों का टेबल का डेटा चेंज नहीं होगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू यूज द edu कमांड्स, IDU, इंसर्ट, ये 3 कमांड से ही आपका डेटा चेंज होता है। यहां पे आप लोग जो चेंज कर रहे हो ना, दिस इज ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस, यहां पे डेटा आपका चेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का, मतलब सब वेरिएशंस हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका और एक वेरिएशन कब यूज करते हैं? लाइक यूज करने का फॉर द पैटर्न मैचिंग, ये आप लोग याद रखो। पैटर्न को अगर आपको मैच करने का है तो लाइक कीवर्ड यूज करने का। अब एक काम करता हूँ, इसको वापस कॉपी करता हूँ, मुझे चाहिए, तो हो गया आप लोगों का स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ ए। नाउ माय नेक्स्ट वन इज, लेट अस टेक letter is
काम करता हूँ, पहला मैं स्टेट डेटा कौन सा देखता हूँ। ओके, सेकेंड लेटर इज ए, सेकेंड लेटर इज ए। एक किसको पता अगर टेल मी, अंडरस्कोर। एम्प्लॉय के नाम सेकेंड लेटर इज ए, क्या होगा कमांड? इसको मैं कॉपी करता हूं भाई। सेकेंड लेटर ए का मतलब होता है आई विल गेट आउटपुट संकेत, संतोष, अमिता नहीं आएगी, अमिता नहीं आएगी, क्योंकि अमिता में ए फर्स्ट आता है, मुझे सेकेंड लेटर ए चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। प्रज्ञा, भावेश, गुड, वेरी गुड। तो क्या करने का देखो, यू नीड टू यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ए%। अभी ये अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? एनी कैरेक्टर, बट एक ही कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, ए टू जेड के बीच में जो भी रहेगा ना, वो कैरेक्टर यहां पे आएगा, अंडरस्कोर का मतलब। एंड ए आपका सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए, और ये ए के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो सी, इसको कॉपी करता हूं अभी मैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सी, तो संतोष एंड संकेत, तो सेकेंड लेटर देखो आपका यहां पे ए आ रहा है। तो लाइकवाइज अगर मुझे सेकेंड लेटर ए चाहिए और लास्ट में समझो एच चाहिए, तो आप लोग क्या करने का, अंडरस्कोर ए %h, तो आपको लास्ट में एच आएगा एंड सेकेंड लेटर ए आएगा। तो ऐसा कौन है यहां पे? तो संतोष। तो संतोष विल बी द आउटपुट। इसको रन करते हैं। ये देखो, तो सेकेंड लेटर इज ए एंड लास्ट में क्या आ गया? एच आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए कि जिनके लेटर में ए आता है। जस्ट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में कि क्या लिखने का। मैं लिखता हूं एम्प्लॉय हैविंग ए इन नेम। नाम में कहीं पे भी ए आएगा ना? यस, वेरी गुड प्रतीक्षा, गुड प्रज्ञा, यस, भावेश ने भी बराबर, वेरी गुड। तो क्या करने का देखो, मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए ना, तो यू कैन राइट %a%। अभी परसेंट का मतलब क्या होता है? एनी कैरेक्टर ए आना चाहिए और ए के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन नेम में आप लोगों का ए तो होना ही चाहिए, लेकिन ए के आगे पीछे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो नाउ आई एग्जीक्यूट दिस एंड आई विल गेट ऑल दिस 5 एम्प्लॉइज, क्योंकि इसमें सभी एम्प्लॉइज में देखो ए आता है, कहीं ना कहीं तो ए आता है। सो आई विल गेट आउटपुट एज ऑल द एम्प्लॉइज। सर क्या जरूरी है अगर परसेंट लिखा तो करेक्टर भी रहना चाहिए वहां पे? अभी देखो, अगर मैंने समझो ए नहीं लिखा, ओके, ए नहीं लिखा, समझो मैंने एस लिखा, तो इसमें होगा क्या कि ऐसे एम्प्लॉइज डिस्प्ले होगा जिनके नाम में एस कहीं पे तो आता है, कहीं ना कहीं तो एस आता है। तो अगर मैं रन करूंगा तो ये देखो, तो संतोष करके डिस्प्ले हो गया देखो, क्योंकि संतोष ही ऐसा एम्प्लॉय है जिनके नाम में स्मॉल एस है, क्योंकि बाकी दो में कैपिटल एस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोगों सर को नंबर्स के लिए वैलिड होगा क्या, ऐसे पूछ रहा है शायद। हाँ बोलो। नंबर्स के लिए ये सर वैलिड मैं होगा पूछ रहा हूँ जैसे जहाँ जहाँ पे ये परसेंट लिखा है वहां पे क्या जरूरी है कि करेक्टर रहना चाहिए? नहीं ये नहीं संतोष में एस पे यस, पर अभी देखो संतोष है, अभी संतोष में स्टार्टिंग में एस आ गया ना आप लोगों का, ये देखो स्टार्टिंग में एस आ गया। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होगा नहीं होगा, बोलो। परसेंट का मतलब 0 या 0 से ज्यादा कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर। अभी संतोष में देखो यहाँ पे एस के पहला कोई भी कैरेक्टर नहीं है, हाँ, लेकिन एस के बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो परसेंट का मतलब होता है नहीं होगा तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा होगा तो भी चलेगा।
आ रहा है समझ में बच्चों? इज इट sir. क्लियर? ओके ठीक है। नाउ तो ये हो गया आपका वेरिएशंस कीवर्ड का। नाउ द नेक्स्ट वन, 8 1 is the salary is between 2000 and 5000। तो जिनका ओके क्या मैसेज किया है सर? परसेंट ओके ओ दिया सर। व्हाट इफ थर्ड और फोर्थ लेटर, और थर्ड लेटर 2 बार अंडरस्कोर देने का। अभी देखो इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेरी टाइप किया कि मुझे थर्ड लेटर ए चाहिए। तो थर्ड लेटर का मतलब होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर देने का। ए आपका थर्ड आ गया। नाउ एग्जीक्यूट दिस। आपका कर्सर लास्ट में आना चाहिए। सी स्वप्ना, थर्ड आपका ए आ गया। तो लाइकवाइज अगर फोर्थ चाहिए तो 3 अंडरस्कोर दो। 3 अंडरस्कोर के बाद फोर्थ वन इज ए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, 2 अंडरस्कोर का मतलब होता है 2 एनी कैरेक्टर, एंड थर्ड आप लोग ए देने का। तो आपका थर्ड लेटर ए कंपलसरी होगा। ओके वेरी गुड, चलो डाउट क्लियर हो गया। नाउ माय हेलो यस बोलो सर, इफ वी वांट लाइक 2 रिक्वायरमेंट्स, लाइक पहला लेटर भी ए हो और लास्ट लेटर भी ए हो, देन हाँ तो A% A तो यू कैन यूज, आई थिंक क्वेरी लिखा था ना, नहीं लिखा सर दोनों का नहीं फर्स्ट पता, लाइक लेटर फर्स्ट एंड इज लास्ट दोनों। फर्स्ट लेटर ए, ओके लास्ट लेटर ए, ओके और ओके दो तो सर so ये परसेंट वाला जो सिंबल है which is n number of letters का sequence that could be used for n number of times in the क्या बोलते हैं उसको inverted commas, like yes. can I तो ये use जो परसेंट है, a percent b percent c percent d, like if I have to find for more 4 or more than 4 letters? मतलब आपको क्या चाहिए, स्टार्ट किससे चाहिए बोलो? सर अगर मान लो स्टार्ट ए से करना है, फिर हाँ। उसने बोला कि ए से ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, और हम लोगों ने 4 लेटर्स लिए, तो हम लोग उसको a% b% c% d लिख सकते हैं क्या? A% C, परसेंट D, हाँ, so we could use it n number of times, right, in the Yes. inverted commas. then you can write any number of time। अभी इसमें होगा क्या, A और C के बीच में एनी कैरेक्टर, C और D के बीच में एनी कैरेक्टर, तो ऐसा आप लोग इसमें दे सकते हो। परसेंट यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डजंट मैटर। ठीक है चलो। and Now sir, the if I next go, like, one, first 2 letters क्या है नेम का, then like AD, like AM हम लोग साथ में लिख सकते हैं, AM परसेंट, A और A और M, like someone's name starts from A M, then वो AM Yes. साथ में लिख सकते हैं या we have to write A% M%? साथ में लिख सकते हैं ना। वेट वेट Okay. अभी अमिता एक थी ना, अमिता, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे A एंड परसेंट आ गया, अमिता AM और अमित AM। तो AM कंपलसरी होना चाहिए, मतलब स्टार्ट आपका AM से होना चाहिए और AM के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा होगा। Okay. तो अगेन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अमी, तो स्टार्ट अमी उसके बाद एनीथिंग, ऐसा भी कर सकते हो। अमित और अमिता, Clear. वेरी गुड, चलो गुड। सो आस्किंग डाउट इट्स वेरी गुड, मतलब आप लोग मतलब अटेंटिव इंटरैक्टिव, गुड। चलो अभी नेक्स्ट वन, 8 क्वेरी इज द ऐसे एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करने का है whose सैलरी बिटवीन 2000 and 5000। तो एक काम करो, जस्ट मुझे एक वेयर कंडीशन लिख के बताओ, पोस्ट में पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में कि हाउ यू राइट द कंडीशन जिनका सैलरी 2000 and 5000 के 2000 and 5000 के बीच में। एनी स्टूडेंट? yes Pradnya, you can write numbers also।
हाँ, लेकिन नंबर्स अगर लिखने के तो यू नीड टू राइट इन कोट्स में लिखना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, क्योंकि पैटर्न मैचिंग है ना, इसलिए। सैलरी ग्रेटर देन 2000, सैलरी लेस देन 5000. आई वांट 2000 5000 इंक्लूडिंग, मतलब 2000 5000 वाला भी चाहिए। बिटवीन एंड का मतलब क्या होता है, सैलरी 2000 का भी चाहिए, 5000 वाला भी चाहिए, तो यू नीड टू यूज इक्वल टू आल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों ने बहुत लॉन्ग कट यूज किया है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, और क्यों यूज करने का दैट आल्सो आई विल टेल यू। एक काम करता हूँ यहाँ पे, सैलरी is greater than or equal to 2000 and salary less than or equal to 5000. तो जिनका सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 एंड सैलरी लेस देन और इक्वल टू 5000, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो देखो कम है, तो ये एम्प्लॉइज 4 एम्प्लॉइज मेरे। नाउ इसका कुछ अल्टरनेटिव किसी को पता है, क्योंकि यहाँ बिटवीन कीवर्ड लिख सकते हैं। बोलो बिटवीन क्लॉज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक काम करता हूँ, 2 वेरिएशंस है, इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ। तो ये आपका आंसर, and write instead of comparing this salary 2 times, you can use salary between 2000 and 5000. तो salary lies between 2000 and 5000. तो ये जो between and है, this is one of the operator to compare this salary twice, 2000 and 5000 के साथ, but including 2000 and 5000, मतलब greater than or equal to, less than or equal to, ये दोनों इसमें आता है। Now I will execute this, I will get same output, ये देखो। तो एक याद रखना कि अगर आप लोगों को 2 बार कंपेयर करने का है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का है, तो यू नीड टू यूज द बिटवीन एंड ऑपरेटर। तो 2 बार आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सर, और नॉट इंक्लूडेड 2000 एंड 5000 होगा तो नॉट यूज करने का, नॉट बिटवीन 2000 एंड 5000। सर नहीं, 2000 और 5000 के बीच में ही, पर 2000 और 5000 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, तो फिर बिटवीन एंड नहीं यूज करने का। तो बिटवीन एंड का मतलब होता है कि इंक्लूडिंग। हाँ, अगर आपको 2000 5000 नहीं चाहिए तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ग्रेटर दैन, और यहाँ पे लेस दैन, तो यही आपको यूज करना पड़ेगा। तो बिटवीन एंड नहीं यूज, अगर आपको इंक्लूडिंग चाहिए इक्वल टू, तो ही बिटवीन एंड करके यूज करने का। अंडरस्टूड? यस सर। है समझ में बच्चों? अंडरस्टूड सर। यस सर। हाँ, चलो अभी और एक वेरिएशन, इसका वेरिएशन मतलब अनदर टाइप ऑफ, हाँ है क्वेश्चन बराबर। I want to display those employees salary is either 2000, 3000 और 4000। तो क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा? एनी चलो पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। सैलरी इज आइदर 2000, 3000 और 4000। ओनली राइट द कंडीशन, डोंट राइट एंटायर स्टेटमेंट। ओके, प्रज्ञा ने बोला है, ठीक है, ओके। एनी अदर स्टूडेंट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। तो सी व्हाट आई विल डू, वेयर सैलरी इक्वल टू 2000 सैलरी इक्वल टू 3000 इक्वल टू 4000। Now I execute this. So there is only one employee
जिसका सैलरी 3000 है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग कट हो गया, तो मैंने क्या किया, सैलरी 3 बार कंपेयर किया एंड एवरी टाइम मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये कंडीशन लिखना पड़ रहा है, दिस 3 कंडीशन। तो इसको अगर मुझे अवॉइड करने का है तो देयर इज वन ऑपरेटर कॉल्ड एज इन ऑपरेटर। तो इन कब यूज करने का, व्हेनेवर यू यूज कंडीशन मल्टीपल टाइम्स एंड और ऑपरेटर होगा तो मल्टीपल टाइम्स अगर और ऑपरेटर है तो यू यूज द इन ऑपरेटर। तो क्या करने का देखो, 2000 कॉमा 3000 कॉमा 4000। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द मल्टीपल कंडीशंस, आप लोग यूज करने का इन ऑपरेटर। ओके, सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, so you'll get the same answer. Okay, so this is very simple query. इसको मैं ये करता हूं। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए क्वेरी कि जिनका सैलरी 2000, 3000 और 4000 नहीं है, वो लोगों को मुझे डिस्प्ले करने का है, तो क्या यूज करोगे? नॉट इन। वेरी गुड, तो यूज करने का यहाँ पे नॉट इन, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिनका सैलरी नॉट इन 2000, 3000, 4000, तो मुझे 3000, 2000, 4000 छोड़ के बाकी सब एम्प्लॉयज आएगा। ये देखो, तो ये एम्प्लॉयज मेरा आउटपुट में आ गया। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट फर्स्ट। फाइन, तो ये हो गया आपका इन एंड नॉट इन। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेरी नंबर 9। नाउ द नेक्स्ट वन, आई वांट टू डिस्प्ले एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अभी एनुअल का मतलब क्या होता है, 12 मंथ्स का सैलरी मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है एम्प्लॉय का। तो अपना जो स्टार्टिंग में जो ये था देखो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है आई कैन राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट अस टेक सिलेक्ट आईडी नेम कॉमा सैलरी इनटू 12। तो सैलरी करके जो कॉलम है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मुझे क्या मिलेगा, एनुअल सैलरी मिलेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। तो लेट अस टेक कॉपी दिस and execute. तो ID name and this is the 12 months का सैलरी, तो every salary is multiply with 12। लेकिन आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो सैलरी इंटू 12 इज नथिंग बट द नेम ऑफ द कॉलम, कॉलम का नाम आ गया। तो मुझे कॉलम का नाम सैलरी इंटू 12 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दिस इज द एनुअल सैलरी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सैलरी इंटू 12 है, तो इसको मैं एज करके लिखता हूं हियर एनुअल सैलरी। देखो ऑब्जर्व करो आप लोग, इसको बोलते हैं अलाइज नेम। अलाइज का मतलब होता है कि ये कॉलम का दूसरा नाम हो गया, दैट इज अ एनुअल सैलरी करके। अभी इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो मतलब एरर आ गया। एक काम करते हैं, सैलरी को निकालते हैं, आ गया, दैट मीन्स सैलरी इंटू 12 एज एनुअल। तो मैं नाम आ गया एनुअल, लेकिन मुझे एनुअल नहीं चाहिए, मुझे एनुअल सैलरी ही चाहिए। एनी स्टूडेंट गिव मी द सजेशन, मैं क्या करूं अभी यहाँ पे? यस, वेरी गुड। तो प्रतीक्षा ने बोला है कि वो कोट्स में लिखो। ओके, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इन सिंगल कोट्स। ओके, नहीं आ रहा है। ओके, तो आई विल राइट द डबल कोट्स। सो नाउ डबल कोट्स वी कैन यूज रीनेम। ओके, हाँ, तो क्या करने का यहाँ पे, नहीं रीनेम नहीं,
यहाँ पे आप लोग जो कॉलम का नाम है सैलरी इंटू 12, ये दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस। ये सैलरी इंटू 12 जो है ना वो आपके टेबल में अपडेट होने वाला नहीं है, ये टेबल में बिल्कुल जाएगा नहीं। दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस। कॉलम में आप लोगों का नया कॉलम एंटर भी नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस, ये आप लोग याद रखो। तो एक याद रखो कि व्हेनेवर देयर इज अ स्पेस, जब आप लोग कॉलम का नाम क्या कर सकते हो, अलाइज नेम देते हो, तो व्हेनेवर देयर इज अ स्पेस यू नीड टू इंक्लूड इन डबल कोट, सिंगल कोट भी नहीं देने का। तो डबल कोट अंडरस्कोर ना जरूरी है। ये बोलो सर, अंडरस्कोर दे सकते हैं ना दोनों के बीच में? हाँ, अंडरस्कोर चलेगा, आपको डबल कोट्स नहीं करने का। हाँ, आप लोगों को अंडरस्कोर करने का तो चलेगा ना। तो एनुअल अंडरस्कोर सैलरी क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया ना अभी। तो एक वर्ड है तो आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्पेस दोगे तो आपको डबल कोट्स लिखना जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये देखो एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। हाँ, लेकिन अगर आप लोग जैसे ही अंडरस्कोर निकालते हो तो आप लोगों का ये दो वर्ड्स हो गया। ये देखो आउटपुट में नहीं आ रहा है, लिखा आउटपुट में आ गया। इवन एज निकालता हूं मैं यहां पे, तो भी आ गया। दैट मीन्स एज आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कॉलम का नाम के बाजू में अगर आप लोग डबल कोट्स में अगर कुछ भी लिखोगे तो आपका कॉलम का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक ही वर्ड होगा तो आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। एज भी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ ऑप्शनल कीवर्ड। ओके, तो अगर नेम का भी नेम को भी कुछ अपडेट मतलब ऐसा चेंज कर सकते हैं तो उसके बगल में भी ऐसे डबल कोट्स में लिख सकते हैं। अगर आपका ये जो नेम लिखा है तो ये समझो अगर मुझे फर्स्ट नेम लिखने का है तो आई कैन राइट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लेटेस्ट टेक में लिखता हूं। ये देखो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आ गया यहाँ पे। तो समझो यहाँ पे आईडी है तो आप लोग मतलब चेंज कर सकते हो कि आई वांट दिस टू डिस्प्ले एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। आ गया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, एनुअल सैलरी। बट एक याद रखो कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस। टेबल के अंदर का डेटा आपका चेंज नहीं, टेबल के अंदर का कॉलम आपका चेंज नहीं हुआ है, वो आपका आईडी ही है। ओके, एक काम करते हैं, अभी मैं कैंसिल करता हूं, फर्स्ट नेम को कैंसिल करता हूं एंड इसको पहले मैं कॉपी करके लेता हूं। लेट्स, क्योंकि ये आइदर दिस और इसका वेरिएशन कॉपी करके लेता हूं। ठीक है, अब इसको कैंसिल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखो मतलब टेबल के अंदर का आपका जो कॉलम है वो कॉलम आपका चेंज नहीं होगा। तो जो मैंने चेंज किया था ना दैट इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस, वहीं पे चेंज होगा, एक्चुअल डेटा आपका चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का 10 क्वेरी आज का। नाउ वंस एक मैं बोलता हूं, लेट अस टेक वन सिंपल क्वेश्चन कि मुझे आंसर चाहिए 200। ओके, ऐसे लेता हूं, लेट अस टेक 11 क्वेरी। आंसर ऑफ 200 प्लस 300 into plus 400 minus 100. Let's take division, one more operator. इसका मुझे आंसर चाहिए, लेकिन कहां पे चाहिए, ओरेकल के अंदर इसका कमांड। इज इट पॉसिबल? Is it possible to write article expression in Oracle? ऐसा लिख सकते हैं क्या? पोस्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। ये
वेट करना, मैं आंसर देता हूँ इसका। ओके, तो फर्स्ट करते या नहीं ओरेकल के अंदर? एनी स्टूडेंट पोस्ट करो, यस, ओके। तो देयर इज अ प्रोविजन, तो कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं है आप लोग, ओरेकल के अंदर ही आप लोग लिख सकते हो। सिलेक्ट नेम ऑफ द टेबल, क्योंकि सिर्फ सिलेक्ट करके नहीं होता है। ये देखो, अगर आप लोग एग्जीक्यूट करोगे ना तो फ्रॉम जो है वो कंपल्सरी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यू नीड टू राइट टेबल का नाम। तो विच टेबल का नाम, क्या एनी स्टूडेंट कि टेबल का नाम क्या देने का बोलो जरा। There is a one table which is used for some temporary calculation. टेम्पररी कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल यूज होता है, वो व्हाट दैट नेम ऑफ द टेबल, किसी को पता है टेबल का नाम क्या है? कोई पोस्ट नहीं कर रहा है अभी तक। नेम ऑफ द टेबल पोस्ट करो, टेबल का नाम। किसी को पता नहीं है टेबल का नाम? नोबडी। ओके ठीक है, पोस्ट करो कि डोंट नो करके, जस्ट पोस्ट डोंट नो द नेम ऑफ द टेबल। टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए टेबल का नाम नहीं पता है मुझे, करो पोस्ट डोंट नो। अरे बाप रे, ठीक है, निखिल को पता नहीं है। ओ गॉड, किसी को नहीं पता सर फ्रॉम टेम्पररी टेबल लिखे तो। अरे टेम्पररी टेबल ऐसा टेबल का नाम नहीं है ना, लेकिन सो टेम्प टेबल, TEMP टेबल, टेम टेबल। ओके, तो फ्रॉम टेम्प ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। ओके, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्प नाम का टेबल ही नहीं है। ओके, एफी कहाँ पे आ गया? एफी आपका खत्म हो गया अभी। ओके, अभी आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे। एफी करके टेबल नहीं। एम्प्लॉय टेबल आपको ऑलरेडी टेबल है ना प्रेजेंट। आप लोग बोल रहे हो कि एम्प्लॉय, डेटा आ गया आप लोगों का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? एम्प्लॉय टेबल के अंदर रोज कितने आपके? 5 रोज है, 5 बार डिस्प्ले हो गया ये, लेकिन डिस्प्ले तो एक ही बार होना चाहिए ना। एम्प्लॉय नॉट एडवाइजेबल। देयर इज अ वन टेबल कॉल्ड द ड्यूएल। किसी को पता था कि ड्यूएल, कभी सुना था क्या आप लोगों ने? ड्यूएल इज अ डमी टेबल। ड्यूएल इज अ डमी टेबल यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सी ये देखो 1790, तो ये आप लोगों का आउटपुट आ गया। और एक बार आप लोगों का ये आंसर डिस्प्ले हो गया ना, अगर आप लोगों ने ये क्वेरी निकाल दिया, लेटेस्ट टेक में क्या करता हूं इसको अभी 100 into 300 करता हूं, तो आप लोगों का नया कैलकुलेशन डिस्प्ले होगा अभी यहाँ पे। ये देखो -28,200, मतलब ड्यूएल इज कॉल्ड एज अ डमी टेबल यूज फॉर द टेम्पररी कैलकुलेशन पर्पस। तो ये आप लोग टेबल याद रखो, द नेम ऑफ द टेबल इज ड्यूएल करके। तो अभी आप लोग याद रखो, दिस इज द ड्यूएल टेबल। इसको मैं कॉपी करके रखता हूं। लास्ट में ये डिवाइड बाय 10। ओके, बाद में इसको आप लोग रीनेम भी कर सकते हो। जस्ट टेक या तो योर कैलकुलेशन इज -28,200, ऐसा आप लोग दे सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आज अपना टोटल 11 क्वेरीज। तो बहुत सारा इसमें हम लोगों ने आज हो गया लर्निंग। ठीक है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे वी विल सी सम अनदर टॉपिक, वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज अपना 10-7 हो गया है। सो इफ एनी क्वेरी अगर आपका होगा तो यू कैन, हाँ, वंस अगेन, वो जो सॉफ्टवेयर जो है मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे 7 और 8% होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो डाउनलोड उसका फेल दिखाता है।
तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वो मैं एक्चुअली जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर है कॉलेज का चेक करता हूँ एग्जैक्टली क्या रीजन है। सर ड्राइव पे भी इश्यू हो रहा है, गूगल ड्राइव पे? गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने ट्राई नहीं किया, अगर हो सकता है तो गूगल ड्राइव के ऊपर ट्राई करके वो लिंक शेयर करता हूँ, तो मैं ये चेक करता हूँ कि MS टीम के ऊपर क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। अगर गूगल ड्राइव पे ऊपर होता है तो मैं वहाँ पे मतलब अपलोड करता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ फिर, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिस करते रहो, ये मैं अपलोड करता हूँ अपने टीम। बोलो सर, डेटा रिट्रीवल कमांड्स में ऐसा कोई कमांड नहीं है जिससे हम रोज का ऑर्डर चेंज कर पाए? किसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? रोज का, लेकिन डेटा जो है वो आपका टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका जो डेटा आप लोग बाद में डालोगे वही डेटा आपको जाएगा। नहीं सर, मतलब स्वप्निल नाम मुझे नीचे देखना है और संतोष ऊपर, ऐसे सॉर्टिंग। हाँ, ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे कैसा हो अल्फाबेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ऑर्डर बाय कमांड इज देयर। वो ऑर्डर बाय का भी मतलब एक बहुत बड़ा किस्सा है। ओके सर। क्योंकि वो मतलब एग्जाम का क्वेश्चन है वो, OCA जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, ऑर्डर बाय का वो अकेला एक ऐसा है, उसका मतलब कुछ अजीब ही मतलब एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोग को बोलूंगा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, उस टाइम हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके चलो तो नाउ सर, और एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। है क्या? हाँ सर। प्रतीक्षा का यस व्हाट सर, इफ नीड टू कंपेयर, नोट्स मैंने अपलोड किया है कीर्ति लास्ट टाइम का। व्हाट इफ वी नीड टू कंपेयर सैलरी आफ्टर फाइंडिंग आउट एनुअल इनकम यूजिंग बिट। प्रतीक्षा, ये जो हम लोगों ने एनुअल इनकम जो डिस्प्ले किया है ना, दैट एनुअल इनकम इज नॉट अ न्यू कॉलम ऑफ योर टेबल। आपका टेबल का जो सैलरी है ना, वो सैलरी कॉलम ही रहेगा। जस्ट वेट वेट वेट, अब ये देखो, ये मेरा सैलरी कॉपी करता हूं, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। ये किया, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वेयर लिखता हूं, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, क्योंकि 5000 से ज्यादा वाला एक एम्प्लॉय था मेरे पास। नाउ आई एग्जीक्यूट दिस। ये देखो, तो अमिता करके जो एम्प्लॉय थी उसका सैलरी 5500 था, तो 5000 से ज्यादा है, उसका एनुअल सैलरी डिस्प्ले हो गया। इसलिए मैं क्या वापस बोल रहा हूं, देखो सैलरी इंटू 12 है ना, ये जस्ट मेरा डिस्प्ले करने के लिए, टेबल में आपका सैलरी में अपडेशन नहीं हो रहा है। टेबल में अगर आपको सैलरी को अपडेट करने का है तो यू नीड टू यूज द अपडेट कमांड, इसका DML कमांड। तो सैलरी इंटू 12 जो कर रहे हो ना, वो आपका मल्टीप्लीकेशन विद सैलरी होगा ही नहीं एक्चुअल टेबल में, वो आपका मेन सैलरी ही होगा। इज योर डाउट क्लियर? प्रतीक्षा सर, ऑपरेटर से फाइंड, हाँ सैलरी, सैलरी क्या लिखा है, इज ग्रेटर देन, हाँ सैलरी इंटू 12 इज ग्रेटर देन एनुअल इनकम। नहीं, मेरे को क्वेरी नहीं समझा तुम्हारा। हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल टेबल में आप लोगों का मतलब ये नहीं होगा। सर, मतलब वो नए वैल्यूज का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। सैलरी इंटू 12 है ना, इसको मैं क्या करता हूं, नाम लेट अस टेक एनुअल करके लिखता हूं, वेयर लेट अस टेक, यहां पे टाइप करता हूं सैलरी इंटू 12 ग्रेटर देन, नहीं क्या बोल रही है कि सिलेक्ट आईडी सैलरी, सैलरी इंटू 12 एज एनुअल सैलरी। प्रतीक्षा, आई एम नॉट गेटिंग योर ये सैलरी क्या,
एनुअल हमें जो न्यू सैलरी मिला है ना, एनुअल सैलरी, यस उनमें से जो वैल्यूज कंपेयर करना है ना, उसका बोल रही हूँ। तो सैलरी इंटू 12 ग्रेटर देन, सपोज मुझे एनुअल सैलरी मिला है 20,000, तो ग्रेटर देन 20,000 एंड जो भी फिर वापस क्वेरी रहेगा वो वैसे लिख सकते हैं, बट बिटवीन ऑपरेटर के साथ कैसे लिखेंगे? बिटवीन एंड के साथ, अभी बिटवीन एंड का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कि दो सैलरी के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और वो दोनों इंक्लूड होना चाहिए। बिटवीन हाँ एंड का सर, मतलब कि हाँ आप सर, लोगों वो का समझा। तो दोनों सैलरी जो है ना, वो दोनों सैलरी के साथ आप लोग कंपल्सरी दोनों के साथ मैच होना चाहिए, इंक्लूडिंग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। वो दोनों क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। वो बिटवीन एंड का यूज है। ठीक है, एक काम करो, तुम ना जस्ट इसके ऊपर ना प्रैक्टिस करके देखो एग्जैक्टली क्या है, एंड अगर स्टिल अगर तुमको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस करो पहला, चलेगा? यस सर। यस, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस करो, करते रहो, एंड उसके बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। हेलो सर। हेलो हाउ हेलो हाउ हेलो आई विल स्टॉप द